Hello everyone, welcome to our channel The Commerce Catalyst. We are going to continue one more questions of bank reconciliation statement. So the questions is on 31st March 2024 bank statement of Prem shows credit balance of 33,570 whereas cash book showed debit balance of 53,000. It means in the books of Prem, in the books of Prem, bank reconciliation reconciliation statement as on 31st March 2020. So this is a format. This is a this is a this is a this is a format. This is the date, particulars, amount, rupees, amount, rupees. On 31st March 2024, bank statement of Prem showed credit balance of 33,570, whereas cash book showed debit balance of 53,000. So, in the books of Prem, it was observed that the difference were because of the following reasons. So, first question is given balance as per passbook. Balance as per passbook. This is the favorable balance, so we write the credit balance. Bank statement's favorable balance is a credit balance. So credit balance given in the question 33,570. 33,570. This is the bank statement show in the books of Prem, and balance 33,570. This is the credit balance of bank account, that is the favorable balance of a bank passbooks. So balance as per passbook. Now write the add or lists. Check and draft sent to the bank but not collected and credited amounted to 7,900, while check for 2,000 was received unpaid. It means check and draft sent to the bank but not collected. It means चेक को जब हमने क्या किया, बैंक में भेजा, तो हमने क्या सोचा कि कैशबुक को हमने बढ़ा दिया. कैशबुक को जब हमने बढ़ा दिया तो 7,900 क्या हुआ, लेकिन वो बैंक में अभी कलेक्ट नहीं है. इसका मतलब पासबुक से जब हम कैशबुक जा रहे हैं तो उसको हम क्या लिखेंगे कि बढ़ा हुआ है. तो यहाँ पे लिख देंगे चेक कलेक्टेड या सेंड टू बैंक बट नॉट credited. Check sent
to bank but not credited. 7,900. But second part of this questions, the 2000 also. So we have sent the two check, one of the 7,900 and another one is that the 2000. So 7,900 is the owner, but 2000 was received but unpaid. So that is the dishonored. So in this case, the 2000 is dishonored. So we write here the check rupees 2000 has been dishonored. Has been dishonored. How much? 2000. So we write here 2000. The next, three checks drawn for presented for payment till 3,000, 1,500 and 2,000 respectively were not 30th April 2024. It means check issued but not presented for payment. Check issued, so 3,000, 1,500 and 2,000, yani 6,500. So that 6,500, yani 3,000 or 6,500. So that 6,500, what is happen here? So happen three checks drawn by presented for payment till 3,000, 1,500, 2,000 respectively were not 30th April. It means जब हमने चेक इशू किया तो हमने क्या सोचा कि हमने इसको घटा दिया, ठीक है, लेकिन उसमें बैंक के पास जो है वो प्रेजेंट नहीं हुआ। तो इसका मतलब पासबुक से कैश बुक में जाना है। तो यहाँ पे लिख देंगे चेक इशूड but not presented for payment. How much? 6,500. 6,500. Next one is that bank has paid a check of rupees 10,000 but it has not been entered in the cash book, and a check of 5,000 which was discounted with the bank was dishonored the drawee on the due date. It means the two parts of this question. First one is the bank has paid a check 10,000 but it has not entered in. बैंक has paid a check. बैंक में एक चेक पे कर, यानी 10,000 से क्या है, 10,000 से बैंक जो है पासबुक जो बड़ा है लेकिन कैश बुक में उसकी एंट्री नहीं हुई है। तो अगर एंट्री नहीं हुई है तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए था? अगर बैंक ने पे किया, बैंक हैज पेड अ चेक ऑफ रुपीज 10,000, बैंक जो है 10,000 रुपये का चेक जो है उसने क्या किया, ये करा बट एंट्री नहीं हुआ कैश बुक में। बैंक हैज पेड अ चेक ऑफ रुपीज 10,000 बट इट हैज नॉट बी इंटर्ड इन कैश बुक। तो बैंक जो पे किया ना एक चेक 10,000 रुपये का, बट इट हैज नॉट बीन इंटर्ड इन कैश बुक। इसको तो जो बैंक पे किया गया उसका एंट्री कैश बुक में नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि कैश बुक अभी भी बढ़ा हुआ है। तो राइट डाउन हियर कि बैंक हैज पेड रुपीज 10,000 but not entered in कैश बुक। मतलब बैंक हैज पेड, मतलब बैंक ने पासबुक में घटा दिया गया लेकिन कैश बुक में भी एंट्री नहीं है तो बढ़ा हुआ है। अब दूसरा इसी में क्वेश्चन में क्या है कि 5,000 which was discounted with the bank was dishonored by the drawee on due date। इसमें से 5,000 जो है वो क्या हुआ, डिजॉनर्ड हो गया। क्या हो गया? डिजॉनर्ड हो गया। तो डिजॉनर्ड होने वाले सिचुएशन में क्या करेंगे? डिजॉनर्ड में वही होगा कि, लेकिन ये डिजॉनर्ड हुआ कब? ऑन ड्यू डेट। तो हम उसमें ये लिखेंगे डिजॉनर्ड
यहाँ पे पहले 10,000, अब क्वेश्चन क्या है? अब क्वेश्चन है कि बैंक हैज चार्ज 130 एज इट्स कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक। बैंक ने चार्ज किया 130 रुपया, यानी बैंक ने डेबिट कर दिया, यानी पासबुक वो घटा हुआ है और कैश बुक बढ़ा हुआ। हम बैलेंस एज पर पासबुक से जा रहे हैं तो इसको भी हम बढ़ा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे बैंक हैज डेबिटेड रुपीज 130, यानी 130 रुपये यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद क्या है? उसी में है कि एंड हैड क्रेडिटेड एज ए इंटरेस्ट 100 इन द अकाउंट, और 100 रुपया जो है वो बैंक ने क्रेडिट कर दिया। बैंक ने 100 रुपया क्रेडिट कर दिया। तो उस समय इस सिचुएशन में क्या होगा कि बैंक तो बढ़ा दिया है लेकिन कैश बुक जो है अभी भी घटा हुआ है, तो पासबुक से कैश बुक के पास गया तो जितना घटा है 100 रुपया सो लिखेंगे। इंटरेस्ट डायरेक्टली क्रेडिटेड, ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, हाउ मच? 100. A wrong debit of 5,000 was made by the bank, which was reversed on 4th April. A wrong debit of 5,000 was made by the bank. एक गलती से 5,000 रुपया जो है, रॉन्ग डेबिट ऑफ 5,000 was made by the bank, बैंक ने गलती से 5,000 को डेबिट कर दिया। लेकिन इसको 4 अप्रैल को, इसका मतलब जब उस दिन किया तो 5,000 से जो डेबिट किया था, 5,000 से 5,000 से जो डेबिट किया था, इसका मतलब पासबुक 5,000 से घटा हुआ था और ये जो है बढ़ा हुआ है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? 5,000 को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे फिर लिख देंगे 5,000। बैंक हैज wrongly debited ₹5,000। ठीक है, अब इसको क्या करना है? टोटल करेंगे तो क्या होगा? 27, ये हो गया 27, 28,030, 28,030। अगेन 10,000, 15,000, 20,000, 27,000, 28,030। इसको अगर करेंगे तो 6,000, 8,000, 8,600, 8,600। अब 28,000 में से 30 माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा कैसे होगा? तो अब देखो ये 28,030 है, तो हम क्या करेंगे? 0 में से आगे 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3, 0 यानी 10 में से 6 गया 4, ये कितना होगा? 7, तो 17 में से 8 गया 9, ये हो गया 1, 19,430, 19,430। ठीक है ये। अब देखो, अब ये क्या है? 33,570। अब इसको हम ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 0, 0, 0, 7, 3, 10, 0, 5, 4, 9, 1, 10, 0, 9 और 3, 12, 1, 13 and 3 और 1, 4 और 1, 5, यानी 53,000। दिस इज द बैलेंस एज पर कैश, बैलेंस एज पर कैश। ये डेबिट बैलेंस। तो माय डियर फ्रेंड, हमने इसमें ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस अभी तक मैंने जो 4 to 5 क्लासेस में इस चीज़ पे फेवरेबल पे बताए हैं। बैलेंस एज पर कैश बुक लेके भी, बैलेंस एज पर पासबुक लेके भी।
अब हम इसके बाद जो है ये अनफेवरेबल में करेंगे, यानी अनफेवरेबल में जो मैंने आई ऑलरेडी डिस्कस इन फर्स्ट क्लास कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो वेरी सिंपल है। जो हमने बोला था कि कैश बुक जब भी हम बनाएंगे तो कैश बुक और पासबुक को समझना है जब हम बीआरएस बनाएंगे। और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक क्या है, कैश बुक जो होता है वो आपके पास होता है, पासबुक भी आपके पास होता है, लेकिन पासबुक पे आप कुछ कर नहीं सकते, कुछ लिख नहीं सकते हैं, वो एक बैंक स्टेटमेंट होता है जो बैंक ही उस पर काम करते हैं। तो इसमें ये समझना जरूरी था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि इसका एक ही कॉन्सेप्ट था कि आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चंस में आपको क्या दिया हुआ है। आई ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दैट कि क्वेश्चन को हम प्रॉपरली पढ़ेंगे, बिकॉज क्वेश्चंस इज क्या बोले थे कि ये पापा एंड मम्मी है, जो बोले वही करें, प्रॉपरली पढ़ें और उसको समझें, और आफ्टर दैट जो है उस हिसाब से उनको ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने ये बताया था कि जब हमें कैश बुक दिया रहेगा तो हम पासबुक के बारे में सोचेंगे इन द नॉर्मल कोर्स, और अगर पासबुक दिया रहेगा तो कैश बुक देंगे। अब ये भी मैंने बता दिया कि पासबुक जो का जो अपना फेवरेबल बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैश बुक का अपना जो होता है वो डेबिट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस में इसका अपोजिट दे देगा, सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन का अगर लेते हैं, मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, इस क्वेश्चन में लिखा है कि बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, लेकिन तो हम अभी किसके बारे में सोचते थे कि कैश बुक में क्या हो रहा है। लेकिन अगर ये दे देगा कि बैलेंस एज पर पासबुक डेबिट, यानी या यहाँ लिख देगा अनफेवरेबल, मतलब उल्टा, जो उसकी अपनी जो है, जैसे मान लीजिए हम अगर अपने कैरेक्टर के विरुद्ध अगर काम करते हैं तो वो ऑपोजिट हो जाता है। जो आदमी एक नॉर्मल है और उसके बाद वो कुछ ऐसे करते हैं जो एबनॉर्मल्स दिखने लगते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट उसी तरह से किया जाएगा। तो जैसे ये नॉर्मल कोर्स में था कि क्रेडिट है बैलेंस एज पर पासबुक, तो हम कैश बुक के पास जा रहे थे तो उसके हिसाब से हम काम कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पे दे देगा कि बैलेंस एज पर पासबुक तो रहेगा, लेकिन क्रेडिट के बदले डेबिट दे देगा, या यहाँ पे लिख देगा अनफेवरेबल, तो उस सिचुएशन में हम जो ये सोच रहे थे अभी बनाने समय में कि पासबुक है तो कैश बुक में क्या हो रहा था, वो चीज सोच रहे थे। उसमें ऐसा नहीं सोचेंगे, उसमें क्या सोचेंगे कि बैलेंस एज पर पासबुक अगर अनफेवरेबल दिया है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हो रहा है वही जो है होगा। या नहीं तो दूसरे शब्द में ऐसे सोच सकते हैं कि जो ऐसे अभी कर रहे हैं, सोचते हैं ना, उसको सोचेंगे ऐसे ही, लेकिन उसका इम्पैक्ट उल्टा कर देंगे। जैसे अभी पासबुक से कैश बुक में सोचते हैं तो जो कैश बुक में ऐड हो रहा है उस समय में हम लेस कर देंगे, और जो अभी लेस हो रहा है उस समय में हम ऐड कर देंगे। बस यही चीज जो है अनफेवरेबल में डिफरेंसेस होता है। लेकिन फिर भी मैं 2-4 प्रॉब्लम उस पर भी सॉल्व करवाऊंगा। होप माय डियर फ्रेंड कि आपको बहुत अच्छा से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इसके बाद हम कराएंगे एक और चैप्टर जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, माने गलत को सही करना। तो गलत को सही तभी कर सकते हैं आप जबकि आपको नॉलेज रहेगा, और उसके लिए जो बेसिक्स क्लासेस हम दिए थे उस बेसिक्स क्लासेस को आपको समझना होगा। उसको आप समझिए, कैसे जनरल एंट्रीज बनाते हैं, क्या रूल्स हैं। नॉट ओनली यू लर्न द गोल्डन रूल कि डेबिट वार्ड्स कम्स इन क्रेडिट वार्ड गोल्ड, और ये से काम नहीं चलेगा। आप वो ठीक है और एग्जाम पर्पस चलेगा, चलो ठीक है, एग्जाम में हमें रूल्स आता है, हमने तीनों रूल्स लिख दिए कि दिस इज द गोल्डन रूल्स, लेकिन डेबिट वार्ड रिसीवर, क्रेडिट वार्ड गिवर, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेन्स इन द क्रेडिट, तो वो लर्निंग के लिए ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्चुअली जब आप अपने माइंड को सेट करते हो तो जो हमने पिलर्स बताए थे, ये पिलर्स क्या है, अकाउंट्स की पिलर आपको ये जो है रिमेंबर कि देयर आर 2 मेन पिलर्स, द रिसीप्ट एंड पेमेंट। और उसके बाद हमने उस चीज़ को बताए थे कि देयर आर 4 सब पिलर्स, जिसमें हमने ये बताए थे कि रिसीप्ट और पेमेंट से कैसे वो होता है, जैसे एक्सपेंसेस होंगे, एसेट्स होंगे, लॉस होंगे, इनकम होंगे, देयर आर 4 सब पिलर्स। तो उस चीज़ को कॉन्सेप्ट में लेकर के जब हम ये बनाएंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी वो आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। तो फर्स्ट अभी हम ये और 2-3 प्रॉब्लम इस पे बताते हैं जिससे कि आपकी हर क्लैरिटी दूर हो जाए, और उसके बाद आप प्रॉब्लम बनाइए। और अगर आपको किसी भी तरह की क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आस्क मी विदाउट हेजिटेशन, और कोई हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से पूछ सकते हैं और कभी भी पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।
आंसर बंद कर इसको फिर बंद कर, फिर दोबारा कर।